Hello and welcome dear students, it's Deepak Tiwari, your physics teacher, here with a new video related to motions. In this video, we'll discuss about the motion and their types. Okay, let me start the video. Now, the motion. What is a motion? In the terms of physics, a motion is a change of position with time. Okay, motion is the change of position of an object with time, okay, with respect to the observer. Okay, the motion, ये जो motion है इसमें कोई भी object जब move करता है with a given interval of time means it's changing its position. Suppose an object is at position A, with respect to time it moves to the position B. Okay, here the object change its position from A to B, then in a given interval of time it is said to be a motion. Okay, now the two phenomena are there, one is motion and the other one is rest. Okay, if the position of an object does not change with time with respect to the observer, the object is said to be at रेस्ट. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वह टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, मींस कि वो अपनी उसी पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, इट डजंट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन द ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट. तो वो रेस्ट पे कहा जाएगा. रेस्ट सिंपली हम कह सकते हैं एक ही पोजीशन पर रुके रहना. नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट सपोज लाइक अ व्हीकल, ओके, we are dealing with the translatory motion at first. The first types of motion, when an object moves in a line such as a way that every point of object moves through a same distance in the same time. It means कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एक लाइन में मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, then it is said to be a translatory motion. Then rectilinear motion. The translatory motion having the two types of motion, the rectilinear and the curvilinear motion. Rectilinear means linear, means a simple straight line. When an object moves along a straight line it is called a rectilinear motion. Okay, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता चला जा रहा है देन उसको हम rectilinear motion कहेंगे. Suppose if we are taking example, the stone falling straight towards the surface of the earth or a car moving on a straight road. Okay, ये rectilinear motion के example है. Then रेक्टिलिनियर मोशन को हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, एंड सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशंस हम कह सकते हैं. देन मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर्स इन अ परेड में जो मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर्स वो हो गया, एंड अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. These are the examples of the linear or the rectilinear motions. Now move to the curvilinear motion. Then object moves along a curved or circular path. जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है कर्व या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसको कर्विलिनियर मोशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, suppose an athlete, okay, an athlete when he throw the javelin, okay, the javelin throw by an athlete is a curvilinear motion, or the ball thrown at an angle has a curvilinear motion. ठीक है, ये एग्जांपल आपका हो सकता है. Now the second type of motion is circular motion. Circular motion mean movement of a body along a circular path. जब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वो एक सर्कुलर मोशन होगा. ओके, सपोज आपने एक स्टोन लिया, उसको एक धागे से आपने उसको बांध दिया, देन उसको आप रोटेट कर रहे हो. ठीक है, क्या कर रहे हो, आप उसको घुमा रहे हो. ठीक है, देन इट इज़ द सर्कुलर मोशन. देन द थर्ड मोशन इज़ रोटेटरी मोशन. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ इट्स मोशन. रोटेटरी मोशन क्या है कि एक सपोज ऑब्जेक्ट है वो अपने ही फिक्स्ड एक्सिस पर मूव करते चला जा रहा है, ठीक है, अपनी रेडियस को चेंज किए हुए बिना. एग्जांपल अगर हम लेंगे द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अगर आप ब्लेड देखें फैंस का तो वो ब्लेड है वो रोटेट कर रहा है. ठीक है, वो जो ब्लेड है वो रोटेट कर रहा है लेकिन जो उसका एक्सिस है वो फिक्स्ड है. ठीक है, ब्लेड्स आर रोटेटिंग विथ अ फिक्स्ड एक्सिस. देन सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है स्पिनिंग टॉप, और आपने वो देखा होगा पॉटर्स व्हील. ठीक है, जो कुम्हार होता है वो जो पॉटर्स व्हील घुमाता है तो वो उसका ईच एंड एवरी पार्ट जो सर्कुलर है वो घूमता रहता है लेकिन वो फिक्स्ड पोजीशन पर उसके एक्सिस पर घूमता है. देन द ऑस्किलेटरी मोशन.
एंड पेंडुलम अगर आप देखें तो ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए पेंडुलम, आप सबने पेंडुलम देखा होगा, तो उसका जो आप मोशन देखेंगे या वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम आपने लगा होगा, जो क्लॉक्स होती है उसके नीचे एक पेंडुलम लगा होता है, अगर आप उसको देखें तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन बॉब, तो उसके नीचे सपोज ये एक पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है और ये बॉब हो गया, ठीक है, ये बॉब हो गया, ये वेट कैरी करता है, ठीक है। तो जब ये मूव करता है टू एंड फ्रो, यानी कि एक तरफ जा रहा है टू हो गया, और फ्रो यानी अपनी ही पोजीशन पर लौट रहा है फ्रो, तो इसका जो टू और फ्रो मोशन हो गया बॉब का, वो एक ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है कि अपनी ही पोजीशन को बार बार पेरियोडिकली क्या है ट्रेस कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन, तो इसी के आगे अगर हम टू एंड फ्रो मोशन की बात करें तो एक और मोशन आता है, वो है आपका वाइब्रेटरी मोशन। ओके, वाइब्रेटरी मोशन, इफ वी विल डिस्कस अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है बॉडी का, द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन्स फिक्स। सपोज ए यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का दो पार्ट है, एक स्ट्रिंग मैंने ले रखी है, ठीक है, और उसको दो पार्ट तो फिक्स हैं, ठीक है, वाइल रेस्ट में है, बट द अदर पार्ट्स जो उसके हैं, एक तो मीन पोजीशन हो गया, ओके, वाइल द रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो उसके ये रेस्ट पार्ट हैं, ठीक है, ये वाला रेस्ट पार्ट, ये और ये तो फिक्स हो गया, और ये जो रेस्ट पार्ट है ये मूव करेगा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो यानी कि एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे की तरफ आएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अपनी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन। सपोज मैंने क्या किया कि एक मेटेलिक वायर ले लिया, ये मैंने मेटेलिक वायर लिया और उसको बांध दिया दो फिक्स्ड पोजीशन, सपोज ए और बी पोजीशन पर मैंने रॉड से अटैच कर दिया। तो व्हेन द वायर इज प्लग्ड, जब मैं इस वायर को हिलाऊंगा तो क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो क्या देखना हो, इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के समय देयर इज अ चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का जो चेंज एंड शेप है, इस स्ट्रिंग का जो शेप एंड साइज है वो चेंज होगा, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे गिटार हो गया, वायलिन, सितार हो गया, उसके जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं वो ऑस्किलेटरी मोशन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मीन्स पीरियड, it means the time, okay, the motion which gets repeated after regular interval of time। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई मोशन बार बार रिपीट हो रहा है देन इसको पेरियोडिक मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ओके, द अर्थ मूविंग अराउंड द सन एंड टेक्स 365 days, 365 and 1/4 days to complete one complete revolution, means after that the motion gets repeated for after every 365 and 1/4 days, it simultaneously repeated itself with their position, okay, then this type of motion is periodic motion। also we can consider as the movement of the moon around the earth, अर्थ के चारों तरफ जो मून मूवमेंट कर रहा है ये भी एक पेरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। नाउ द सेकंड इज द नॉन पेरियोडिक मोशन, इट इज जस्ट अपोजिट टू द पेरियोडिक वन व्हेन which does not repeat itself after regular interval of time, okay, for example the footballer running on a field, or the application of brakes while moving in a vehicle, or the ball rolling down the ground gradually slows down and finally stops, okay, then motion of the tides in a sea is also example of a non periodic motion। now the multiple motion, समटाइम्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू अ मोर टाइप्स ऑफ मोशन सिमल्टेनियसली, एक ही बार में जो है दो या दो से ज़्यादा टाइप्स में मोशन वो पोजेस करता है। फॉर एग्जांपल उसी को हम मल्टीपल मोशन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सपोज एक पर्सन है, वो वाटर में से, वो वेल में से वाटर निकाल रहा है बाय यूजिंग द रोप एंड अ बकेट। तो वहाँ पर क्या है कि एक पुली लगी होती है, आपने गाँव में देखा होगा कि उस पुली के थ्रू निकालता है। तो जो पुली है ऑन विच द रोप रन्स हैज़ रोटेटरी मोशन, तो पुली कौन सा मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, रोटेटरी मोशन, वाइल जो बकेट होगी और जो रोप होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, शो करेगा। ऑल्सो टेक इन एन एग्जाम्पल, आपने ड्रिलिंग मशीन देखी होगी, जो कारपेंटर ड्रिल करता है, होल करता है वुड में, वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों ही होगा। ट्रांसलेटरी जो आगे की तरफ उस ड्रिल को लेके जा रहा है, और रोटेटरी वो जो ड्रिल रोटेट करता है। तो मीन टाइम एंड द सेम टाइम दीज आर द टू multiple types of motions are there। now the rolling motion, rolling motion when a body undergoes translatory as well as rotatory motion, ओके, जिसमें एक बॉडी में ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों ही हो रहा हो। सपोज आपने एलपीजी का सिलेंडर होगा, आपने जो है इंक्लाइन प्लेन पे उसको जो है पुश किया और वो रोटेट कर रहा है। तो पहली बात तो क्या है कि वो रोल कर रहा है, ठीक है, यानी कि रोटेट भी कर रहा है,
as well as वो translate भी कर रहा है, because it is moving in a straight line or they are rotating as well, that's why it is a rolling motion. Also we will taking about the example of movement of bicycle wheel. Okay, bicycle wheel जो है वो rotate भी कर रहा है, and when we are moving it in the plain direction or the simple direction or one direction, straight direction, straight line, it is the translatory motion. So today we have discussed the different types of motion. We will discuss about some more about this lesson, the uniform motion, non-uniform, about the simple pendulum, the speed, the velocities. Okay, in the next upcoming video, hope you will understand about that. That's all for this session. Okay, if you have any doubt, then you can query me. I'll be coming back with a new video of that part. Till then, take care and bye bye.